take a large shining spoon which we consider as a curved mirror. Now try to view your face in its curved surface. अगर आप एक शाइनिंग स्पून में अपना फेस देखते हैं, what do you get? Your face is smaller or larger? Okay, now move the spoon slowly away from your face. जैसे जैसे हम फेस से दूर ले जाते जा रहे हैं स्पून को, can you observe the size of the image now? How does it change? इमेज पहले बड़ी थी हमारी, जैसे ही हम स्पून को दूर लेकर जाते हैं इमेज स्मॉलर होती जा रही है. नाउ रिवर्स द स्पून एंड नाउ सी योर इमेज. तो जब हम स्पून में दूसरी साइड हमारा फेस देखते हैं, द इमेज ऑफ आवर फेस अपीयर्स लार्जर देन आवर एक्चुअल फेस. दिस इज बिकॉज कॉन्केव मिरर्स कैन क्रिएट लार्जर वर्चुअल इमेजेस. तो इस तरफ से ये जो स्पून है ये एक्ट कर रही है एक कॉन्केव मिरर की तरह, और दूसरी तरफ से ये एक्ट कर रही थी कॉन्वेक्स मिरर की तरह. तो कॉन्वेक्स साइड से इमेज जो थी वो हमारे एक्चुअल फेस से स्मॉलर थी. दिस इज बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज प्रोड्यूस स्मॉलर वर्चुअल इमेजेस. वर्चुअल मतलब इट अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर. इस तरह की जो इमेजेस होंगी वो वर्चुअल कहलाती हैं. द इमेज इज इरेक्ट और अपराइट. हमेशा अपराइट होगी या इरेक्ट होगी. कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्पून बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग और फनी मिरर, which is why the image is smaller and appears farther away from you as compared to your actual face. The convex side of the spoon curves outward, causing light to diverge and create this effect. और concave side से क्या होता है? The image of our face appears larger than our actual face. This is because concave mirrors means the inside shiny surface of the spoon can create larger virtual image. The image is still erect and upright. The concave side of the spoon behaves like a converging mirror, which is why the image appears larger and closer to us than our actual face. The concave side of the spoon curves inward, causing light to converge and create this effect. So in the case of convex side, as we move the spoon away, the image will get smaller and appear even farther from us. But in the case of the concave side, moving the spoon away will cause the image to become smaller and seem more distant as well. Now if we reverse the spoon and repeat this activity, it will essentially switch the characteristics of the images. The concave side, which initially created larger images, produces smaller ones. So the conclusion of this activity is the characteristics of the images formed on the two surfaces of the spoon are a result of the curvature of the surfaces. The convex side acts as a diverging mirror, creating smaller and more distant virtual images, while the concave side acts as a converging mirror, creating larger and closer virtual images. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स को हम और डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स. तो स्फेरिकल मिरर्स इस तरह के होते हैं जो कर्व्ड सरफेसेस वाले होते हैं. तो जिनमें इस सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर्स होते हैं कॉन्केव, और जिन मिरर्स पर आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर. और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं.
So this is the representation of spherical mirrors. The shaded side is non-reflecting and unshaded side is reflecting side. यानी जो पार्ट अनशेडेड है, यानी ये जो कॉन्केव मिरर है, इसकी इनर साइड जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी यहाँ लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, और कॉन्वेक्स मिरर पर बाहर की साइड यानी आउटर सरफेस पर लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है. सो अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. जैसे स्पून का कर्व हमने देखा है, तो स्पून के कर्व की जो इनवर्ड साइड है दैट इज कॉन्केव मिरर, एंड जो आउटर साइड है यानी पीछे की तरफ से ये जो साइड है स्पून का, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर. बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स, वी नीड टू recognize and understand the meaning of a few terms. तो कुछ टर्म्स हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और जानने से पहले, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से ग्रैस्प कर पाएं. तो अगर ये है एक प्लेन मिरर और यहाँ हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, सो एन ऑब्जेक्ट ए बी इज हियर. तो ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर. तो मिरर पर जो लाइट आई है सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, वो कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे होगी लाइट की. तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल. अब ये नॉर्मल से कितने एंगल पर गिरी है? 45, 90? नो, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पर ही है. सो हियर इंसिडेंट एंगल इज 0. तो अब अगर I 0 है, एंगल ऑफ R कितना होगा? यानी जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना होगा? 0. चाहे वो कितना भी हो, दोनों हमेशा सेम होंगे. तो यहाँ इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 0. तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वापस इसी रास्ते से आ जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट से गई इंसिडेंट रे और वहीं से वापस आ गई रिफ्लेक्टेड रे. दोनों का एंगल सेम है नॉर्मल से 0 डिग्री. तो जो सीधी रे गई इस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर, वो गई और वापस आ गई. अब एक और रे देखते हैं इंसिडेंट करके. अब हमने फिर से नॉर्मल बनाया, तो यहां पर एंगल आई जितना है उतना ही एंगल आर भी होगा. तो रिफ्लेक्टेड रे भी चली गई सेम एंगल से. तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे जा रही है सीधी, और वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है सेम वे से, और एक रे जा रही है थोड़ी सी मुड़कर और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है इस डायरेक्शन में. तो क्या आपको लगता है ये दोनों रेज कभी मिल पाएंगी? नेवर. ये कभी नहीं मिलती है. यानी ये दोनों रेज जब तक नहीं मिलेगी तब तक इमेज नहीं बनेगी. तो इन दोनों रेज को अगर इस तरफ से हम बढ़ाते जाए तो क्या कभी मिलेगी? नो. तो इन दोनों रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर मिलाना पड़ता है, यानी दोनों खुद नहीं मिलती हैं, जबरदस्ती मिलानी पड़ती है. तो जब जबरदस्ती रेज को मिलाते हैं तब बनती है वर्चुअल इमेज, रियल नहीं. अगर ये दोनों रेज खुद से मिल रही होती, हमें मिलाना नहीं पड़ता, तो बनती रियल इमेज. बट अगर इन दोनों रेज को हमें मिलाना पड़ रहा है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में जबरदस्ती, तो बनती है वर्चुअल इमेज. तो ये दोनों रेज हेड से निकली थी, तो जहां भी ये बैकवर्ड साइड में मीट कर रही है यानी मिल रही है, उस पॉइंट पर हमें हेड की इमेज मिलेगी. क्योंकि हेड से निकल रही है ये दोनों रेज, तो हमें इमेज भी हेड की मिलेगी, यानी एक ही इमेज मिलेगी.
अब इसी तरह से मान लीजिए बी पॉइंट से फिर से जाती है इंसिडेंट रे एकदम सीधी प्लेन मिरर पर, और फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पर। फिर इसको भी पीछे की साइड कर दो तो हमें इसकी बी पॉइंट की भी इमेज मिल जाएगी। तो इस तरफ है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज। तो मिरर से इस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और मिरर से इमेज के डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को v से। तो प्लेन मिरर्स पर इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पर मिलती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी मिरर से उतनी ही दूर है जितनी की इमेज है। जैसे हमारे घर में जो हम मिरर यूज करते हैं अपने आप को देखने के लिए, अगर हम उसके पास में खड़े होते हैं तो हमारी इमेज भी हमें पास ही नजर आती है। जब हम उससे दूर खड़े हो जाते हैं तो आप देखोगे आपकी इमेज भी दूर होती जाती है। तो एक्चुअली जितना दूर आप मिरर से खड़े होते हो उतना ही मिरर के अंदर भी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की मतलब हमारी डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों सेम होती है। सो प्लेन मिरर्स में नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है इसका सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होगी इमेज की भी। सेम हाइट होगी दोनों की, ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। यानी दोनों की हाइट सेम होती है। यानी आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपको क्या अपना जो फेस है वो बहुत बड़ा लगता है? क्या आपको लगता है आपके फेस में स्वेलिंग आ गई है या फिर वो श्रिंक हो गया है? नो, एकदम सेम साइज का फेस हमें दिखाई देता है। तो जैसे हम एक्चुअली हैं वैसे ही हम दिखाई देते हैं एक प्लेन मिरर में। सो सेम साइज ऑफ इमेज विल बी देयर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों है? हमने दोनों रेज को जबरदस्ती मिलाया है, वो खुद से नहीं मिली हैं। अब ये मिलती कैसे हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। बट अभी के लिए हम ये याद रखेंगे कि ये रियल इमेज नहीं होती है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी, यानी वो सीधी है। तो हेड के सामने हमेशा हेड ही आता है। हेड की जगह हमारे लेग्स नहीं दिखते हैं, हमारे फुट नहीं दिखते हैं। पेट के सामने पेट ही आता है, पैरों के सामने पैर ही आते हैं। तो इसे कहते हैं इरेक्ट इमेज बनना, यानी सीधी इमेज। लास्ट फीचर ऑफ दिस प्लेन मिरर इमेज इज ये हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। यानी लेफ्ट हैंड हमेशा इमेज में हमें राइट नजर आता है और राइट हैंड हमेशा इमेज में हमें लेफ्ट नजर आता है। और ये लेटरली इन्वर्टेड वाला जो फीचर है ये सारे मिरर्स में सेम है। चाहे कोई भी मिरर हो, लेफ्ट वाला हमें राइट दिखेगा और राइट वाला हमेशा लेफ्ट दिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस पे भी जो लेटर्स हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाते हैं, तो मिरर में हमें सीधा दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। जैसे एक्स है, एक्स को अगर हम मिरर में देखेंगे किसी पेपर पर लिख कर तो क्या एक्स हमें लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा? नो। बट जेड दिखेगा, वाई दिखेगा। सो वाई इज लेटरली इन्वर्टेड लेटर, जेड इज ऑल्सो लेटरली इन्वर्टेड लेटर। ऐसी चीजें आपसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है। ओ लेटरली इन्वर्टेड लेटर है? नो। सी, यस इट इज लेटरली इन्वर्टेड लेटर, क्योंकि सी हम लिख रहे ऐसा है बट दिख हमें उस तरफ से रहा है। यानी राइट हैंड कर्व है लेकिन हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड कर्व। तो स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली एक कांच की बॉल है। इट इज अ ग्लास स्फेरिकल बॉल। तो अगर एक स्फेरिकल ग्लास बॉल का 80% पार्ट जो है हमने काट कर अलग कर दिया और सिर्फ 20% पार्ट अगर ले लिया, तो जो 20% ग्लास का बॉल जो बचा हुआ है, जो कि हॉलो है, अंदर से भरा हुआ नहीं है, खाली है,
अब इस 20% वाले पार्ट पर हमने एक साइड में अगर पॉलिश कर दी, तो अगर हमने इस साइड पर पॉलिश कर दिया यानी बैक साइड पर पॉलिश कर दी है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो गई? अंदर वाली, इनर साइड. नाउ इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड फॉर दिस मिरर. तो जब इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर. और अगर हम इनर साइड को पॉलिश कर देंगे तो आउटर साइड हो जाएगी रिफ्लेक्टेड साइड. देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. So in concave mirror, light will reflect here, 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 here and here. और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट पड़ेगी बाहर की तरफ, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होगी आउटर साइड पर, यहां 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 यहां. तो कॉन्केव मिरर के इनर साइड पर लाइट पड़ रही है और कॉन्वेक्स मिरर के आउटर साइड पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो अब क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, अब उसके बाद क्या? तो कॉनकेव मिरर का जो नेचर है वो है लाइट रेज को कन्वर्ज करने वाला, यानी लाइट रेज को ये इकट्ठा करता है. तो जो भी लाइट्स हमने अभी रिफ्लेक्ट करवाई है मिरर्स पर, वो पैरेलल लाइट्स हैं, पैरेलल जा रही हैं सारी रेज. तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो कहां जा रही है? फर्स्ट वाली जो रे है यहां आ रही है, सेकेंड वाली यहां आ रही है, थर्ड वाली यहां आ रही है. ये तो सारी की सारी सेम पॉइंट पर आ रही है. सेम पॉइंट पर आ रही है मतलब एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं. दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. इसे हम F से डिनोट करते हैं. So the reflected rays in the concave mirror appear to come from a point on the principal axis. तो ये जो एक्सिस है जिस पर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इस पर ये जो पॉइंट बना है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर. And the principal focus is represented by the letter capital F. पैरेलल लाइट की रेज आई यानी इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पर आकर मिल गई या मीट हुई, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस पॉइंट. तो कन्वर्जिंग मिरर ने या फिर कॉनकेव मिरर ने क्या किया? रेज को कन्वर्ज किया. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इन इंसिडेंट रेज का क्या करेगा? कन्वर्ज नहीं करेगा. ये इन रेज को डाइवर्ज करेगा. डाइवर्ज मतलब फैलाना, यानी ये एक पॉइंट पर इनको इकट्ठा नहीं करेगा. तो फैलाएगा तो क्या मिरर इन रेज को अपनी मर्जी से इधर उधर फेंक देगा? नो. तो जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट होता है, हमें लगता है ऐसा कि लाइंस यहां पर मीट हो रही हैं सारी, लेकिन वो होती नहीं है. तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें ये लगता है क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिल रही हैं, पर वो मिलती नहीं है रियल में. तो हमें लगता है कि ये रे यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, और सारी रेज मिलकर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर मिल रही हैं. लेकिन क्या ये मिल सकती हैं? क्योंकि अंदर तो पॉलिश कर दी गई है, मिरर जो है ऑपेक हो चुका है. तो क्या कभी ऐसे हो सकता है कि एक ऑपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाए? नेवर. तो ये रेज यहां से इस तरह से निकल जाती है, ये इधर से निकलती है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, लेकिन हमें लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर मिल रही है. यानी इन रेज को फैला दिया जाता है, डाइवर्ज कर दिया जाता है. इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर्स ऑल्सो. तो ये रेज आती है और फोकस से पूछती है क्या हम अंदर आ जाएं, लेकिन
फोकस बोलता है नहीं तुम नहीं आ सकते क्योंकि ये तो ओपेक हो चुका है मिरर, अंदर तो पॉलिश है, तुम मेरे पास कैसे आओगी। तो इंसिडेंट रेज जो है निकल जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज को भेज देती है बाहर की तरफ। लेकिन ये एंगल्स अपने आप से डिसाइड नहीं होते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से इस तरह से नजर आते हैं जैसे हमें ऐसा लगता है कि फोकस पॉइंट पर रेज जो है मिल रही हैं, बट एक्चुअली वो मिलती नहीं है। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो 80% तो हमने काट के फेंक दिया और 20% जो बचा हॉलो मिरर, दैट इज यूज्ड एज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम इसको पूरा स्फेरिकल मानते हैं तो सेंटर ऑफ स्फेयर जो होता है इसको हम कहते हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों स्फेरिकल मिरर से ही बने हुए हैं। तो अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसका सेंटर तो होगा ही होगा। तो जो सेंटर पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by the letter capital C. And remember one thing, curvature of center is not a part of a mirror. ये बस हमने इमेजिन करने के लिए एक पॉइंट रखा है चीजों को समझने के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का पार्ट नहीं है क्योंकि सेंटर तो हम काट चुके हैं, मिरर में बचा ही नहीं है वो सेंटर। बट यहां हमने चीजों को समझने के लिए एक बार ध्यान रखा है कि ये पॉइंट होता है। सो प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो कॉनकेव मिरर होगा उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? इनर साइड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर है? इनर साइड ही है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रिफ्लेक्टिंग साइड है आउटर साइड, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के बाहर की साइड, यानी स्फेयर के तो अंदर है सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में ही, लेकिन रिफ्लेक्टिंग साइड दोनों में अलग अलग साइड है। इसमें इनर साइड है और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनर साइड, यानी मिरर के अंदर की साइड ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसमें? कॉनकेव मिरर में। बट कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर से बाहर की साइड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आ रही है वो मिरर पर जिस पॉइंट पर कट रही है उस पॉइंट को कहेंगे P. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. So pole को डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। तो पोल तो दोनों मिरर की सरफेसेस पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में इनर साइड पे होगा और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर साइड पर होगा। और C और P का जो मिड पॉइंट है वो होता है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, जिस पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट होती हैं या मिलती हैं। और ये जो लाइन हमें दिख रही है ये पीछे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी जा सकती है और आगे भी जा सकती है। इसीलिए इस लाइन को हम कहते हैं या इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस है? जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस पर पोल है, जिस पर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, यानी C, P और F जिस एक्सिस पर प्रेजेंट है वो एक्सिस होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है ये कर्व, जैसे ये हैंड है, हैंड एकदम स्ट्रेट है, पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरे पे लाइट आ रही है।
अब जैसे जैसे इसको फोल्ड करते जाएंगे, पूरा हैंड नहीं दिख रहा है अब, क्योंकि इनर साइड पर क्या आ गया है, डार्कनेस आ गई है, लाइट नहीं पहुंच पा रही है अब अंदर की साइड। सो अपर्चर अब कम होता जा रहा है, तो ये मिरर का अपर्चर है। तो सिंपली हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ मिरर और लेंस विच इज एक्सपोज टू लाइट इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो अगर हम अपने हैंड को मिरर समझ लें, तो जैसे जैसे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, तो जो लाइटिंग एरिया है, जो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, दैट इज अपर्चर। तो जैसे जैसे ये कर्व होता जाएगा, वैसे वैसे अपर्चर कम होता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ अ मिरर और लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है वो भी मिरर से बाहर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बाहर की तरफ है, पोल सरफेस पर है दोनों का ही, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। और सेंटर से यानी सी से पी तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से स्फेयर तक की जो डिस्टेंस होती है, हम किसी स्फेयर को भी अगर स्टडी करते हैं या फिर हमने मैथ्स में भी देखा है, किसी सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेके स्फेयर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो इस आर को जो कि मिरर की आर है यानी रेडियस है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई पॉइंट नहीं है, ये एक लेंथ है। और ये लेंथ कहां से कहां तक की है, सी से लेके पी तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक। यानी रेडियस के अंदर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी आता है। ये तीनों पॉइंट सी, पी और एफ तीनों आते हैं रेडियस के अंदर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ एक पॉइंट पर है ये। इसी तरह से प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी एक पॉइंट है, पोल भी एक पॉइंट पर है, लेकिन रेडियस सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, दिस इज अ लेंथ, ये लंबाई है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक। अब जो F से P तक का डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, यानी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and the principal focus point of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by the small letter f. और अगर हम ध्यान से देखें, if you observe carefully, the focal length is half of radius of curvature. या फिर अगर मैथ्स में आपने सर्किल और एक्सिस और रेडियस ये सब ध्यान से देखा हो अगर, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि इस रेडियस का आधा है फोकल लेंथ, यानी सी, एफ और पी, ये तीनों पॉइंट्स तक, सी से लेके पी तक रेडियस है, सिर्फ एफ से पी तक है फोकल लेंथ। तो यानी फोकल लेंथ से डबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, कैसे भी बोल दो। सो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन टर्म्स से रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है और हमसे पूछा है फोकल लेंथ क्या है, तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ ही तो करना है उसको। अगर फोकल लेंथ दी होगी तो हम रेडियस निकाल लेंगे। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, यानी फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर इक्वल्स टू 2f. The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो m और n पॉइंट है, so this distance mn represents the aperture. जितना कर्व और ज्यादा होता जाएगा, एपरेचर कम होता जाएगा। और स्फेरिकल मिरर्स में जो एपरेचर है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम होता है. For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice of the focal length. So we put this formula r equals to 2f. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. ये बात अच्छे से समझ आ गई? एक बार फिर से देखते हैं. ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. P से F तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. P से C तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होती है फोकल लेंथ के, या फिर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है. That's why we write it as f equals to r upon 2, or we can write it as r equals to 2f. तो जो भी टर्म्स हमने पढ़ी है उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम देखते हैं एक्टिविटी से.